I think there should be a plan B, but there are lots of variables involved in this exam. If you're starting early, जैसे मैंने right after my graduation start किया था, then you have the luxury to give 2 or 3 serious attempts. And if you're starting late, let's say 25, 26 without getting employed before, then there is a slightly added pressure on you as well. I think there are other examinations also. RBI Grade B, I think, is a very, very good, I cannot say it a backup option or a plan B option, because it is a very good post in itself. And there are exams like EPFO and other exams also that people give. But I think you should give 2 serious attempts to this exam, and 3 also if there is a scope of improvement. Like I knew that मेरे marks improve हो रहे हैं in every means, so there was a scope of improvement and I acted on it. But like I said, variables इतने ज़्यादा हैं कि you cannot plan everything. We all know that the UPSC CSE or the UPSC Civil Service exam is one which is quite a mystery, because you can never be too sure कि आपका attempt कैसा गया है. Sometimes you see toppers who have managed to clear it in their very first attempt. Sometimes it's the second, it's the third or the fourth. And sometimes कुछ लोग कुछ छोटी चीजों की वजह से चूक जाते हैं, but उनकी मेहनत complete रहती है. So today we are going to be meeting a topper जिन्होंने ऐसा ही कुछ experience किया है, and with his experience he is going to be guiding all of you in what you could do better. And maybe in your next attempt or your first attempt, it could be something which is very beneficial for you with all the pointers that he has today. Hi everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers and initiated by Unacademy. I'm Fiona. और आज हम जिस टॉपर से मिलने वाले हैं, उनसे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ. कैसे? We'll tell you a little later. But आज हम मिलने वाले हैं All India Rank 68 Utkarsh Ujjwal से. So everyone, let's welcome him. Hi Utkarsh, welcome to the show. Thank you so much, Fiona. तो उत्कर्ष, जैसे कि first of all तो welcome back to Unacademy's Chamomile Tea with Toppers. Back इसलिए बोलूँगी because जैसे कि मैंने mention किया, हम बहुत I think कुछ साल पहले भी मिल चुके हैं, but in different circumstances. Exactly. Or so why don't you tell a little to our students कि पहले आप क्या कर रहे थे and how is it that probably you knew us in the beginning? I started my graduation in 2015. And 2016 के around, because I was quite interested in teaching and I'm very fond of mathematics as well. So मुझे लगा I should find a platform जहाँ पे मैं maths पढ़ा पाऊँ. And also because I realized कि जो मैंने JEE में maths पढ़ा है और वो धीरे धीरे fade होने लगेगा. So that's why I used to teach on Unacademy. I used to upload videos on mathematics for JEE and also for other competitive exams like NTSE, KVPY. So in fact, I have around close to 130-140 short videos on the Unacademy platform back in 2016, 17, and I think 18 also. Correct. In my college days. Okay. And that's why that's when I was in contact with you as well. So it's good to finally meet you in person. Yes, it is, and it's so good that finally I meet you, and when I meet you with someone who has cracked the civil service exam and now on the way to become one of our future officers. So well done, and I'm super happy to be finally meeting you. तो उत्कर्ष, since आपने थोड़ा सा हमें back, history, आप थोड़े से अपने personal history में जा चुके हो, so let's actually go back there, which will give our learners and our audience also a good understanding. थोड़ा सा अगर आप हमें take us back to your family, your upbringing, tell us a little bit आप कहाँ से आते हो, आपके family में कौन-कौन है, and obviously a little bit about your school and college journey. Yes. I originally belong to Patna. I have 3 elder sisters. All of them are employed, and in fact they were the biggest pillars of support during my preparation. I prepared from my home mostly. For this attempt मैं Delhi आया था, but I wrote my initial 2 mains from Delhi itself, from Patna itself. घर पे center था मेरा, and DAV public school में I had my primary education as well as till my class 12th I was in DAV public school Patna. After that, in 2015, I entered IIT Guwahati to pursue my graduation. I graduated in civil engineering in 2019, and in fact, I attempted the prelims of 2019 itself. But वो काफी close था from your graduation, right? Yes. I think I graduated on
I left college campus on 20th May के around, Uh-huh. and prelims was on 2nd of June. So 12 दिनों का था time, plus I had studied only a couple of months in my final semester. So I could not clear prelims that year. That's the fact. And उसके बाद I wrote mains of 20, 21 as well as 22. Okay. And I also wrote forest services का mains of 2020 as well as 22. Okay. So this is my background story. My option was anthropology. It was anthropology in all the attempts that I wrote. And forest services में this year my option was forestry and geology, Okay. with which I qualified for the interview stage. Okay, but you obviously skipped the interview. Yes, right? yes. My interview was just a day before yesterday, and I skipped it because I got a rank here. Okay, perfect. So एक चीज मुझे बताइए उत्कर्ष, आपने कहा कि आप स्कूल में आप DPS में थे, उसके बाद आप IIT भी गए. थोड़ा सा I wanted to understand because this is a question a lot of young learners also have, or maybe the ones who are still in college who usually ask that ये जो टॉपर है क्या वो हमेशा ही अच्छा था as a performer, as a student, अच्छा था in school and college, and that's why he topped. So थोड़ा सा tell us, like if you can share what was the kind of score or CGPA जो आपका 10 में था, 12 में था and college में था. I was a good student in my school days. In 10th class I got a 10 CGPA, and in 12th also I got close to 95-96%. Mm-hmm. But in graduation my CPI was 7.8 or something. So it is not very good. It's just slightly above average. And why do you think graduation में drop आया? I think graduation में बहुत सारे और areas थे to explore. I was very passionate towards basketball, so I played in all the 4 years of my college, and I also explored other sports as well. So initial days में थोड़ा drop था, initial semesters में. After that I picked up, but final CPI was less than 8, and that's why. Got it. And after that, yes, the exam I think demands a level of hard work as well as smart work. So people are doing hard work, I can understand, and I think an element of smart work भी चाहिए उसके लिए to clear this exam, because it is competitive. That's number one, and बहुत सारे लोग कर रहे हैं मेहनत आपके जितना. So there is an element of smart work that you have to put in. You have to use your own discretion कि आप क्या चीजें पढ़ रहे हो, क्या चीजें उनमें से क्या कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और कैसे आप उसको यूज कर रहे हो फाइनल एग्जाम में. इन सब का बैलेंस चाहिए मेरे हिसाब से. चलिए, तो अभी आपने जो मेंशन किया, आई थिंक इसके ही पॉइंटर्स आई एम गोइंग टू आस्क यू मोर फर्दर राउंड. बट एक चीज जो मुझे समझनी है कि आपने कहा कि आप कॉलेज में आपके मार्क्स थोड़े से, ऑब्वियसली आपका परसेंटेज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ. देयर वाज अ लिटिल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशनल जर्नी, राइट? Yes. तो इसके लिए अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू आस्क यू, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और मे बी एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन करते हैं, एंड समटाइम्स दे आल्सो फेस अ फॉल और अ ड्रॉप. And I think कभी-कभी it becomes more difficult for people जो have always been achievers. मैं recently I also met Chaitanya, who's also one of the rankers this year, और उन्होंने बताया that someone who's always done well in academics या has always been an achiever, उनके लिए और भी difficult हो जाता है, because the day you don't, that's when everyone is pointing fingers at you. So based on that, I also want कि I know that you definitely you work towards that also. तो थोड़ा सा आपका भी point of view in terms of motivation, in terms when you are depressed or when you have that low phase, and thoda about keeping your mental health well. Yes, I think it's a very important question that you asked. I would give credit to my 3 sisters. Mm-hmm. I think उन्होंने हमेशा मुझे right frame of mind में रखा कि life will not be a very smooth path. आपके life में challenges आएंगे, setbacks आएंगे. In fact, in my final semester, I had a knee injury, जिसकी रिकवरी में almost 1 साल लगे. And right when I recovered, COVID struck. So basically रिकवरी के 6 महीने and COVID के 1-1.5 साल I was at my home, pretty much isolated. And I wrote mains during that time as well. So mental state सही रखना gets very tricky at times. And that's when you need the support of your family, your friends, your mentors if you have someone. And for someone who has always been achieving things, it might get a little tough, but we should understand that it will never be a smooth path. And chaos ko normalize karna, it's very important in this exam. And we should accept the fact that there will be setbacks. We will fail in this exam. I think एक learning जो मैंने बहुत जल्दी सीखी थी in this preparation is that we have to fail very early, so that we can learn from them and do not repeat the mistakes again. So there is a small advice for people who are postponing things कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से prepare करेंगे, then only we can write and then only we'll succeed.
I think it's important to fail early in this exam. Keep failing because we will fail. This exam is such that it's very important to keep the right mindset. और failures को as a failure नहीं लेना चाहिए. उसमें से हमें extract करना चाहिए चीजें which we can learn from and improve. And I think the most important thing is that we should never repeat the same mistakes again. At least we should try to not repeat the same mistakes again, because you are back to square one if you are doing the same things again. True. So I think बहुत ही clear thought, viewpoints है आपके, and I love it how you end it always with a smile. तो एक चीज मुझे बताइए कि आपने कहा कि preparation जब आप कर रहे थे, you also had an injury. So take us a little through your attempts. कितने attempts दिए थे आपने, and what did you feel different in every attempt? And also if अगर आप कुछ points share कर सको कि what was the changes that you brought in your strategy after analyzing your earlier attempt, and ऐसे करके what did you finally do different जो इस वक्त this attempt में आपका clear हुआ? Yes, I gave 4 attempts in totality. 2019 का attempt was right after my graduation, and उस attempt में I could not clear prelims. I think it was good that I could not clear prelims because मेरे पास notes भी नहीं थे और बहुत rudimentary knowledge था of every topic. And it was a conscious choice to not take foundation coaching from anywhere. In fact, both for GS as well as optional, I did not take coaching anywhere. Just test series पे rely किया है मैंने throughout the 4 attempts that I have. I wrote my first mains in 2020. 2020 के mains में I got I think 665 marks, which is 80 marks less than the cutoff. So pretty much I was behind, way behind. उस attempt में GS में भी I had 340 type का score. Optional में I had close to 200, and SM I had 125. So scope of improvement था every paper में. उसके बाद I did the course correction जहाँ तक मुझसे हो पाया because I was doing self study. So I made notes of topics that were left. In fact, there are topics which I still have left. World history मुझे अभी भी अच्छे से नहीं मैंने पढ़ा है. Because खुद से पढ़ने पे वो motivation नहीं आ पाता है for certain topics. Geography also मेरी knowledge काफी weak है. I humbly accept that. And इसकी वजह से GS1 में मेरे marks नहीं आते हैं कभी. 3 mains लिखे हैं, तीनों में close to 95 marks आए हैं, which is below average. So I made notes of topics that I had left in my first mains, and after my first mains, and I gave the second mains also. Thankfully मेरा prelims after the first वाला prelims, मेरा prelims कभी hurdle नहीं बना है. I cleared all the 3 prelims that I had, and I also cleared forest prelims twice. So in second mains I had corrected many areas जहाँ पे मुझसे गलती हुई थी पहले mains में. My marks improved to around 710, and ethics में जैसे first mains में I had 77. Second mains में I could improve it to 107. Optional paper 1 also I got more than 140 marks. But there were areas like optional paper 2 my marks were 100, close to 100 in both the first mains that I wrote. तो आपके हर attempt में optional same था? हाँ, anthropology was my option in all the 4 attempts. And that was also a choice जो मैंने खुद ही किया था बाकी options को देख कर कि कहाँ पे मेरा interest lie करता है और कहाँ पे I will be able to study on my own for 3-4 years if I have to. तो इसलिए मैंने आंसर रखा था ऑप्शनल. एंड सेकेंड मेंस में मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए थे, बट स्टिल आई वाज 30 मार्क्स शॉर्ट ऑफ द कट ऑफ. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि एक और अटेम्प्ट देते हैं, इस बार दिल्ली जाकर देंगे. और ये डिसीजन इसलिए था बिकॉज घर पे वो एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन नहीं आ पाया था मुझ में. आई रोट 3 hour टेस्ट बट आई रोट इन 3 shifts. So which essentially means nothing. I wrote 3 hour test, 1 hour, 1 hour, 1 hour. तो उससे कुछ होता नहीं था ज़्यादा. And optional के in fact पहले 2 attempts में I wrote only 3 tests combined in the first 2 mains. Okay. So that's when I decided to come to Delhi. It was a very बहुत सोच के decide किया था. I was in Bangalore at my sister's home last year. और 2 महीने मैं यहीं पे था without my books. And that's when I decided कि एक और attempt देते हैं अच्छे से दिल्ली जाकर. In fact, it's very interesting that 3 महीने मेरे पास books ही नहीं थे last year, right before my prelims, because I shifted directly from Bangalore to Delhi, and my books were shipped from my home Patna to Delhi a month later. Okay. So I was not with my books for around 3 months. And this was आपकी actual attempt. Yes, right before this prelims. Okay. And thankfully I cleared prelims because उसमें डर हो गया था कि books ही नहीं है मेरे पास, मैं पढ़ कहाँ से रहा हूँ. जी. Thankfully I cleared prelims, and after that I wrote tests. वो जो 3 महीने का टाइम था प्रीलिम्स और मेंस का, उसमें आई इंश्योर्ड कि आई विल गिव माय बेस्ट, बिकॉज आई हैड रियलाइज्ड कि
after a certain time आपकी the capacity to give also decreases. So mind cannot दिमाग से आप लगातार काम नहीं करा सकते without giving it a break. I was writing mains for the past 2 years and I had realized that I cannot sustain it for 2, 3, 4 more years because I needed a break. So that's when I decided to give everything I had. इस वाले मेंस में I wrote close to 20-25 tests at the center. Optional के भी मैंने 8 टेस्ट लिखे थे इस बार, फुल 3 आवर टेस्ट वाले मोड में 6-8 लिखे थे एंड थैंकफुली मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं इस बार सारे पेपर्स में. ऑप्शनल पेपर 2 में जहाँ पे मुझे पहले 2 मेंस में 99 और 100 थे, इस बार I got 157, which is close to the highest marks in optional paper 2. That's quite a big jump. Yes, also. Close to 60 marks jump. True. And my mains marks also improved by 114 marks, 707 to 821. So that enabled me to get the rank that I have. Great. तो मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ आपने जो अभी हमें बताया उसके अकॉर्डिंग द वन मेजर difference that you brought in इस attempt में was that you moved from your comfort zone. Exactly. Obviously you had to move away from home and actually sat down for the proper test the way that it should be sat. Exactly. जो आप शायद पहले attempts में नहीं कर रहे थे. So this was the major change which again maybe आपके attempt से ही आपने analyze किया कि this is जहाँ शायद आप थोड़ा चूक रहे थे, which is why you made this major difference and that has given you the results, right? So I think ये बहुत ही important हो जाता है to actually be able to spot कहाँ आपकी गलती हो रही है या what needs to be changed. Sometimes it's the strategy of the way that you're studying. Sometimes it's just coming out of your comfort zone. Exactly. Right? And I'll add one more point, Fiona, that I did not add any new content for this attempt. घर पे मैंने जितना content prepare किया था, that was enough. I deep down inside I knew that was enough, but उनको channelize करके I was not able to produce on paper. So इस attempt में I'll accept that I did not add any new content except for GS2-3 का current जो हम पढ़ते हैं. For most of the papers मैंने पुराने notes पे ही rely किया है जो मैंने पहले बनाया है घर पे. So it was also very brave decision कि नए content के पीछे नहीं भागेंगे, जितना हमने पहले किया है उसको करेंगे. And I think it's something that aspirants have to devise on their own कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है. अगर आपके नोट्स वीक है तो नोट्स प्रिपेयर करेंगे. अगर आपके पास नोट्स हैं और टेस्ट आप नहीं लिख रहे हो, so you should not run behind making more and more notes, more and more content पढ़ने के बजाय you should write tests in proper stimulated environment. और वहाँ से I think but बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए you know ये हो नहीं पा रहा है and there is this constant every year जो वो try करते जा रहे हैं, करे जा रहे हैं and that kind of wears you out, right? Because ये बहुत लंबी preparation भी है. The entire exam itself is a very long examination जो आप prepare करते हैं compared to any other examination. तो what would you say, like you know, अगर कोई plan B किसी को सोचना चाहिए तो वो कब से सोच लेना चाहिए? Is it like after the first attempt or before the first attempt or like say by the second attempt? कब you know when should someone take action की okay exam के लिए मैं तैयारी तो करूँगा but with that I also need a plan B. So according to you, अगर suppose आपके लिए भी इस बार नहीं होता, what would your plan of action be? And अगर आपको अभी फिलहाल other aspirants भी जो है जो शायद repeated attempts कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या suggestion होगा? When is the right time to have a plan B and should there be a plan B? I think there should be a plan B, but there are lots of variables involved in this exam. If you're starting early, जैसे मैंने right after my graduation start किया था, then you have the luxury to give 2 or 3 serious attempts. And if you're starting late, let's say 25, 26 without getting employed before, then there is a slightly added pressure on you as well. I think there are other examinations also. RBI Grade B, I think is a very, very good, I cannot say it a backup option or a plan B option because it is a very good post in itself. And there are exams like EPFO and other exams also that people give. But I think you should give 2 serious attempts to this exam and 3 also if there is a scope of improvement. Like I knew that मेरे marks improve हो रहे हैं in every mains. So there was a scope of improvement and I acted on it. But like I said, variables इतने ज़्यादा हैं कि you cannot plan everything. Suppose I did not clear prelims in let's say my second mains जहाँ पे मैंने clear किया था, then I could have thought of a plan B or a backup option then itself. But because I was writing mains, मुझे कभी वो void नहीं दिखा था बहुत लंबा जहाँ पे मुझे लगा था कि I do not have anything to do, so let's do something else type का.
So I think आपने बहुत ही अच्छी एक point जो बताई है. I think it really also depends आपने exactly exam की तैयारी शुरू कब से की. And the way that you said, I think it's very rightly put कि if you are starting it off at a way earlier stage, you still have that time to keep preparing for it and attempts देते रहना. तो plan B इतना immediate आपको सोचना नहीं पड़ता है. But yes, अगर if you are starting the preparation or your first attempt itself is in the later phase of the age criteria, then I think थोड़ा सा you need to be aware कि कितने साल तक can you manage based on your situation. Yes, and also the mental aspect of the preparation also gets heavier as you enter during the later stages of 25, 26 ऐसे age में. Because there will be life situations, there will be more challenges that you are dealing with on a daily basis. Exactly. Rather responsibilities आ जाते हैं. Correct. I think it makes perfect sense. So, Utkarsh, let's actually go to prelims. That's the first stage of the examination. या उससे भी prelims में ही let's talk about CSAT. I know that आप खुद एक educator रह चुके हो maths में. maths has been one of your stronger points. But CSAT में जैसे this year also there's a big debate going on that questions IIT से आ गए and all of that. So let's break down a little bit about CSAT preparation. आपने obviously हर attempt में उसको clear किया है. If you had to suggest all the other aspiring aspirants about preparing for the CSAT, how will you break down CSAT and क्या suggest कर सकोगे आप सबके लिए कि CSAT की तैयारी वो कैसे कर सके, which can probably give them success in their attempt? Yes. I think CSAT बहुत बड़ा variable आ गया है preparation में, especially in last 2 or 3 years, because the level of questions is getting tougher. And even if engineering background के students can handle it, it gets difficult for people who have lost touch with mathematics 2-3-4 सालों से. For example, if someone has a humanities का background, then उनके लिए difficult हो सकता है. I think इसमें भी हमें CSAT को mathematically ही देखना चाहिए, because we have to get 66 marks 200 में. So we do not have to solve every question that UPSC offers us. वहाँ पे around 25-30 questions होंगे English comprehension के, कुछ reasoning के questions होंगे and कुछ होंगे hardcore mathematics. I think hardcore maths के questions can be left out apart from 5 to 10 questions. If someone has mathematics as their weak spot, then they should try कि RC वाले questions, English वाले questions maximum attempt करें, like 20, 22, 23 ऐसे attempt करें, and reasoning भी करें. Areas identify करने important है Fiona, I think, कि कौन से areas से questions हम कर सकते हैं. I think if someone has practiced enough, उनको पेपर देख के पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो भी नहीं होगा मुझसे, और इस क्वेश्चन में मैं 1-1.5 मिनट दूंगा तो आई विल बी एबल टू सॉल्व इट. ये पता होना जरूरी है, एंड आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस. मैथमेटिक्स कैन बी इंटिमिडेटिंग फॉर सम, एंड उसकी वजह से मैंने लोगों को देखा है कि दे डू नॉट टच इट राइट बिफोर द CSAT पेपर. लाइक 15 दिन पहले इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग मैथ्स, यू वोंट बी एबल टू डू एग्जाम में, यू वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, बिकॉज CSAT का पेपर में भी मेंटल एस्पेक्ट बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स द सेकंड पेपर ऑफ द डे एंड एग्जाम इज इन May, June. सो उस टाइम पे पीक समर होता है. यू जस्ट हैड योर ब्रेक जहाँ पे आप कहीं बाहर बैठे होगे, धूप में होगे, कहीं होगे, then you have to come back and solve mathematics के question, so it gets tougher. I think CSAT को mathematically deal करना चाहिए कि we just have to get 66 marks. उसके लिए हम किस combination में around कितने question solve करेंगे और कितने questions गलत करने का scope है हमारे पास, उससे हमारे marks 80, 85, 90 टाइप के आएंगे. I think it's not a good thing to target 150 marks, 140 marks. वो करने पे we can go negative. So we should target 100 marks, 110, 115 marks ऐसे, और उसके लिए हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखना चाहिए. आई थिंक PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सॉल्व. PYQ से पता लगेगा कि किस एरिया से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. लाइक पीपल आर सेइंग कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट इफ वी सी द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस PNC के ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं. प्रीवियस ईयर में भी वैसे क्वेश्चंस थे. सो इफ वी सॉल्व द लेट्स से 30 क्वेश्चन जो PNC के आए हैं पुराने सालों में, then we'll be able to solve 3 or 4 questions इस बार के भी. 10 में 3-4 कर लेंगे हम. And it's good that we are able to solve 3-4 questions. उससे ज़्यादा करने भी नहीं है. There are 5 questions which we do not have to attempt. So, and one more thing in CSAT paper जो मैंने अपने दोस्तों को ही देखा है, they start with the mathematics a question, उसमें लग जाते हैं 3-4 मिनट. And ideally you cannot give more than 2 minutes to the paper to particular question. हाँ. So, अगर आपने 4 मिनट लगा दिए हैं, so दिमाग को प्रेशर ये आ जाता है कि मैंने इस पे टाइम भी लगा दिया है, आंसर भी नहीं आया, बट आई हैव टू मार्क समथिंग बिकॉज मैंने इस पे टाइम दिया है.
सो दे मार्क समथिंग, कोई आंसर मार्क कर देता है जो उन्हें लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली यही है, और फिर वहां पे गलती होती है अगर, तो बहुत नुकसान है, बिकॉज आपने टाइम भी दिया है, आपने नेगेटिव भी कर दिया उस क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन पे आप पैनिक मोड में ही जाओगे क्योंकि आपका आंसर आया नहीं था, आपने मार्क किया कुछ। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करने वाले हो। आप कैसे अटेम्प्ट करते थे वो, लाइक व्हाट वुड यू फर्स्ट पिक, इवन दो सिंस मैथ्स वाज स्टिल योर स्ट्रॉन्गर पॉइंट, फिर भी हाउ वुड यू सेलेक्ट द क्वेश्चंस, व्हिच वंस वुड यू गो फर्स्ट? In my first go I used to select mathematics के easy वाले questions जो देख के मुझे पता लग रहा है कि मैं उसको solve कर लूंगा 1-1.5 मिनट लगाकर। So ऐसे suppose मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 20-25 क्वेश्चन फर्स्ट गो में, अराउंड 35-40 मिनट्स, 30-35 मिनट में, जस्ट 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा लेट्स अज्यूम। उसके बाद आई कम बैक टू द इंग्लिश के क्वेश्चंस। इंग्लिश में भी देयर आर क्वेश्चंस व्हिच से कि assumption, what is being assumed in the passage, what is being inferred in the passage, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। assumption वाले क्वेश्चंस आई लेफ्ट ऑल टुगेदर बिकॉज नहीं आते थे मुझे, आइडियली गलत कर देता था मैं। सो मैं इंग्लिश के इजी क्वेश्चंस खोजता था, 10 क्वेश्चन इजी वाले अटेम्प्ट करता था, देन आई वेंट बैक टू मैथमेटिक्स, थोड़े टफ क्वेश्चंस किए, सो ऐसे इटरेशन में करता था सो दैट इजी क्वेश्चंस ना छूट जाए। और पेपर सीसैट कैसा होता है कि इजी क्वेश्चंस आर स्प्रिंकल्ड इन बिटवीन टफ क्वेश्चंस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द पेजेस, फाइंड व्हिच क्वेश्चंस आर इजी एंड सॉल्व देम बिफोरहैंड। I love the way that you just mentioned कि easy ones are sprinkled yes. difficult वालों के बीच में, because I think बहुत बार ऐसा होता है which is again probably our brains our minds playing with us कि जब difficult देखते जा रहे हैं we assume बाकी सारे भी difficult ही होंगे, but probably I think आपने जो कहा if previous PYQs अगर करो then you will realize वो जो sprinkling effect बीच में आता है। चलिए great, so I think CSAT के लिए in case अगर if you had to just suggest some resources that you used उसके preparation के लिए, what would you recommend? I personally did not go through mathematics के resources, but if your maths is poor then you can watch some YouTube videos on important topics. For example, permutation combination के basics आप पढ़ सकते हो YouTube देखकर। I do not know also any particular book जो है, but I think YouTube और internet का अच्छा use करना is very important. Okay. For passage questions also you have to know what an assumption means or what inference means. इसलिए there are videos on internet जहाँ पर आप देखकर basic idea लगा सकते हो। And also if someone is extremely underconfident in mathematics, they can join some course also, or they can get help from seniors or mentors just to know about कि कैसे करते हैं। And lastly, formulas, one should keep a sheet where जहाँ पे उन्होंने formulas लिखे हुए हैं mathematics के, और GS के पेपर के बाद वाले ब्रेक में they should read the formulas, go through them, ताकि दिमाग को पता होना चाहिए कि formulas इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। I think it's better to prepare beforehand also. Great. तो चलिए ये तो रहा पूरा ही CSAT का the first stage, and obviously hoping that everyone who's watching also उनका भी CSAT ऐसे ही clear हो जाए। Coming to the prelims stage, because prelims is one thing I think apart from the first attempt which आपने कुछ 10-12 दिनों में ही दिया था, every other attempt you have managed to clear it. तो take us a little bit through prelims आप attempt कैसे करते थे, what was your strategy for the prelims stage, and also अगर if you could take us through the resources you used for all the subjects. Right. So prelims, as we know, is an objective paper, और I did not see the question paper of this year, so मेरी knowledge 2021-22 के prelims तक की है। I think it's very important to look at the PYQs. PYQs should be your best friends in prelims का preparation, because that's where we can hone our elimination skills. That's where we can understand कि किस topic से ज़्यादा questions पूछ रही है UPSC। अगर हम पेपर को देखेंगे तो वी विल रियलाइज कि टॉपिक्स लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर, इकोनॉमी में देयर आर ट्रेंड्स के क्वेश्चन कि रेपो रेट घटाएंगे तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन घटाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी रेगुलरली पूछ रही है एग्जाम में। दैट्स फर्स्ट थिंग। प्रीलिम्स में एक तो हो गया प्रिपरेशन वाला एस्पेक्ट, एक हो गया मेंटली प्रिपेयर होना फॉर द एग्जाम, और एक हुआ एग्जाम में उसको एग्जीक्यूट करना। आई थिंक इन तीनों पे बात करते हैं। फर्स्टली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे। प्रीलिम्स के लिए आई मेड नोट्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नोट्स प्रीलिम्स के लिए क्यों बना रहे हो, मेंस के लिए बनाओ, बिकॉज एवरीथिंग विल बी नोट्स अगर आप प्रीलिम्स के लिए करने लगे तो। बट आई इंश्योर्ड कि मैंने कीवर्ड सेंट्रिक नोट्स बनाए हैं प्रीलिम्स के लिए। और कीवर्ड सेंट्रिक नोट्स का मतलब है कि जस्ट कीवर्ड को मैंने हाईलाइट किया, उसके बारे में एक लाइन लिखा है, जस्ट वन लाइन। ऐसे एवर नोट पे मेरे अलग अलग नोटबुक्स थे। एक जैसे करंट अफेयर्स का नोटबुक था, उसमें करंट में जो कीवर्ड्स चल रहे हैं उनका था। अगर मैंने कोई कंपाइलेशन पढ़ा है, ये सारे मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था, और ऑनलाइन नोट्स बनाना आसान होता था एवर नोट पे मेरे लिए।
सो आई मेड नोट्स ऑफ इट, और इनको मैंने एक्टिव रिवाइज करने का एक तरीका ढूंढा था. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव लेट्स से 10 बुकलेट्स, 10 एवरनोट पे थोड़ा सा मेरे नोट्स हो जाता था, आई यूज्ड टू प्रिंट इट और अपने पास रख के हार्ड कॉपी पे उसको रिवाइज करता था. मतलब नोट मेकिंग वाज ऑनलाइन बट नोट रिवीजन वाज ऑफलाइन, हार्ड कॉपी पे. सो सपोज आई हैव लेट्स से 10 बुकलेट्स ऑफ प्रीलिम्स के नोट्स. आई यूज्ड टू राइट डाउन ऑन टॉप ऑफ इट किस डेट को मैंने रिवाइज किया है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से 1 जनवरी को मैंने पहला नोट रिवाइज किया है, उसको मैं उस फाइल में सबसे नीचे रखता था. तो सेकंड वाला जो बुकलेट है वो सामने है, अब उसको मैंने लेट्स से 10 जनवरी को रिवाइज किया है, उसको फिर करके उसके नीचे. तो 1 जनवरी वाला जो बुकलेट है वो लेट्स से 15 फरवरी को वापस ऊपर आएगा. सो उस टाइम पे आई यूज्ड टू रिवाइज दैट. तो ऐसे करके हर 15, 20, 30 दिनों पे एवरी नोट वाज गेटिंग रिवाइज्ड एंड वो फाइल में नीचे होते जाता था. सो स्पेस्ड रिवीजन एक होता है कॉन्सेप्ट. जैसे अगर हम किसी चीज को लेट्स से पहला रिवीजन शुड बी इन 10-12 डेज. अगर 10 दिनों में हमने किसी चीज को दोबारा रिवाइज नहीं किया तो इट विल फेड अवे. तो 10 दिनों में एक रिवीजन, अगला रिवीजन कैन बी 20-30 डेज लेटर, अगला रिवीजन कैन बी 40-50 डेज लेटर. ऐसे स्पेस्ड वे में रिवाइज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये मैंने इंश्योर किया था अपने नोट से खुद ही रिवाइज करने के लिए. एंड फाइनली कितने बुकलेट्स हो गए थे आप? आई थिंक आई हैड अराउंड 20 बुकलेट्स के करीब, व्हिच आर नोट्स ऑफ टेस्ट. बहुत सारे लोग टेस्ट के नोट्स नहीं बनाते, इसमें बहुत आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट इट. आपने अगर कोई टेस्ट दिया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सट्रैक्ट 50-60 पॉइंट्स आउट ऑफ इट, जो कि प्रीलिम से पूछी जा सकता है, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो. So, हर 100 क्वेश्चन से आई यूज्ड टू गेट 50-60 पॉइंट्स, उसको मैं एवरनोट पे लिखता था और फिर उस टेस्ट को दोबारा नहीं देखता था, बिकॉज आई हैड मेड नोट्स ऑफ इट. बहुत सारे लोग उस टेस्ट को ही दोबारा पढ़ते हैं. प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ये होती है कि अगर आपने 50 टेस्ट दिए हैं तो आपके पास 50 टेस्ट की बुकलेट्स हैं, उनको रिवाइज करना इज डिफिकल्ट बिकॉज क्वेश्चन फॉर्मेट में है वो पूरा. सो आप 50 × 100 5000 क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर सकते हो. बट अगर आपने एक टेस्ट से 50 पॉइंट्स लिखे हैं, सो इट्स वेरी इजी टू रिवाइज दोस 50 पॉइंट्स. सो प्रीलिम्स के नोट्स ऐसे रिवाइज मैं ऐसे करता था. सोर्स प्रीलिम्स का सब्जेक्ट वाइज, yes, I have a piece of paper if I can sure. go through it. Yes, because I did not want to miss anything. No problem. I think एक और चीज है कि I think probably for all the learners it could be very helpful is अगर आप कुछ screenshots हमें अपने Evernote के दे देना, so that you know they also have an idea क्या headers हो सकते हैं for making their notes also. Yes, I also have a Telegram channel if you can search. वहाँ पे मैंने कुछ चीजें डाली हैं and I'll upload more. Talking about my sources of prelims, history के लिए spectrum तो पढ़ा था मैंने. आई इंश्योर्ड कि स्पेक्ट्रम के जो लास्ट के पेजेस हैं 20-30 पेजेस, वहाँ पे बुक्स लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज लिखी हुई, उनको मैंने अलग से फाड़ लिया था टेप करके, उसको अलग से पढ़ता था मैं. स्पेक्ट्रम पढ़ने के अलावा जैसे मैंने बोला कि कुछ एरियाज बहुत रिपीट होते हैं, उनका विकिपीडिया पेज पढ़ा था मैंने, इनिशियल 1-2 पैराग्राफ, और उससे मुझे पता लगा था कि क्या चीज़ें, क्या मेजर कीवर्ड्स हैं इस टॉपिक में, बिकॉज विकिपीडिया डज कवर देम इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ. हिस्ट्री में एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न है. मॉडर्न में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड की डिफरेंस. फॉर एग्जांपल 1909 का एक्ट और 1919 का एक्ट, इन दोनों एक्ट में डिफरेंसेस क्या हैं, हमेशा कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए. इफ यू नो कि ऑगस्ट ऑफ क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन, ये 4 चीज़ों में डिफरेंस क्या है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे. अगर हम इंडिविजुअली चारों को पढ़ें तो इट्स ईजी टू गेट कंफ्यूज्ड. आई थिंक हमेशा कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए. सिमिलरली इन पॉलिटी ऑल्सो हमेशा गवर्नर और प्रेसिडेंट को कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए कि इनकी पावर्स में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है. आर्ट एंड कल्चर, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसमें आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो गया था. एंड नितिन सिंघानिया वाले बुक से मैंने बहुत सेलेक्टिव स्टडी की थी. फॉर एग्जांपल आई थिंक ओनली आर्किटेक्चर वाला पोर्शन मैंने पढ़ा था उनकी किताब से. और एक मेजर सोर्स था मेरे आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट जो मैं देता था, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर कैन बी एनीथिंग. अब खुद से सर्च करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो मैं टेस्ट जो देता था, एटलीस्ट आई इंश्योर्ड कि उसके नोट्स हैं मेरे पास. टेस्ट में जो आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस है उसके नोट्स मेरे पास होते थे, एंड ओवर द टाइम वही नोट्स मेरे कॉम्प्रिहेंसिव हो गए थे, टेस्ट वाले ही नोट्स. एंड ये सेम फॉर्मूला आप यूज करते थे जैसे यू सजेस्टेड कि हर टेस्ट के पॉइंट्स बना लो. एग्जैक्टली, पॉइंटर्स और उनको रिवीजन. और इंटरनेट का एक्सटेंसिव यूज जरूरी है. आई थिंक फॉर एवरी स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन इंटरनेट का एक्सटेंसिव यूज जरूरी है, बट वी शुड नॉट गेट ड्राउन्ड इन द इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है. इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें अपना डिस्क्रिप्शन यूज करना बहुत जरूरी है कि हम कौन से सोर्स को कैसे पढ़ रहे हैं. आई थिंक ओवर टाइम मैंने एक स्किल तो अपनी डेवलप कर ली थी कि अगर आप मुझे लेट्स से 50-100 पेज की बुक दोगे, सो आई विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट कि मेरे काम का क्या है इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स. और कैन यू सजेस्ट 1-2 पॉइंटर्स कि दूसरे भी ये स्किल को कैसे ग्रो कर सकते हैं? बेयर टेक्स्ट पढ़ना जरूरी है. अगर कंपाइलेशंस में हम चले जाते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि
आई कैन अंडरस्टैंड टाइम लिमिटेड होता है और बहुत सारी कोचिंग्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करती हैं शॉर्टर वर्जन ऑफ द बुक, बट आई थिंक शुरू में मैंने बेसिक सोर्सेज ही पढ़े थे. आई डिड नॉट रिलाई ऑन कंपाइलेशंस इन द बिगिनिंग. और कीवर्ड्स पे नज़र जाती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, सो आपके कीवर्ड्स पे नज़र जाए और उससे पता लगे कि इस पैराग्राफ में लिखा क्या हुआ है. ओवर टाइम ये स्किल आ जाती है. आई बिलीव इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट इन बिगिनिंग, बट ओवर टाइम यू विल बी एबल टू स्किम थ्रू द पेजेस और पता लग जाए कि इस पेज में क्या बोला गया होगा रफली और क्या चीज़ें एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं. तो इसमें आई जस्ट वांट टू टच इस पॉइंट पे. आपने कहा कि ओवर द टाइम ये डेवलप हो तो जाता है, मगर जैसे कि आपने कहा कि ट्राई टू स्पॉट द कीवर्ड्स, राइट? तो ये कीवर्ड्स लाइक अगर सपोज पहली बार अगर कोई पढ़ रहा है, उसको कैसे पता चले कि दीज आर द कीवर्ड्स आई शुड बी स्पॉटिंग? तो उस कीवर्ड्स को क्या आपने पहले ही probably from the syllabus या कहीं और से decode करके आपने एक keywords का you had a list or something which that this is what I need to find in the text, ऐसा कोई yes Fiona, very important thing you mentioned. syllabus और PYQs बहुत important है. syllabus तो हमें पता होना ही चाहिए कि syllabus में क्या क्या terms mentioned है, because there are things which we can control and there are things which are important. और हमारी प्रिपरेशन हमेशा उसके इंटरसेक्शन पे होनी चाहिए. जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो सिलेबस में नहीं है. फर्स्ट वी शुड कवर व्हाट इज इन द सिलेबस. उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस में एग्जैक्टली वर्ड्स क्या मेंशन है. फॉर एग्जांपल अगर सिलेबस में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट मेंशन है, मतलब सारी चीज़ें हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट की इंपॉर्टेंट हैं, बट जो चीज़ें मेंशन नहीं है उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए. पहली चीज़ तो ये है. बट आई थिंक फर्स्ट रीडिंग में वी शुड स्टडी व्हाट इज द टेक्स्ट. सब्सिक्वेंट रीडिंग्स में ही आती हैं कि हमारे कीवर्ड्स पे नज़र जाए, और पहली रीडिंग के बाद आप हाईलाइट कर लो उस कीवर्ड को जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है. फिर दूसरी रीडिंग में नज़र सिर्फ कीवर्ड्स पे जाएगी, सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शंस पे जाएगी. ओवर टाइम ही आएगा, बट वी शुड नॉट ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट्स इन द फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ. फर्स्ट रीडिंग शुड बी इलैबोरेट. फर्स्ट रीडिंग शुड बी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, बिकॉज एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाती है फॉर सर्टेन टॉपिक्स, फिर वो इट स्टेज विथ यू. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ रेपो रेट इज, इट विल स्टे विथ यू, वो कहीं नहीं जाएगा. So first reading में it's important to understand things. उसके बाद revision में it gets easier if you can focus on the keywords only. Okay. And tell me something. अभी since आप books के बारे में ही हमें बता रहे हो, if you can also tell me कि how many complete readings of every resource, the books that you have used, कितने हुए होंगे on average? आपके हर book के कितने complete readings हुए होंगे? For example अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो मैंने स्पेक्ट्रम इंटायर टेक्स्ट आई थिंक 3 बार पढ़ा होगा, 3 से 4 बार. उसके बाद आई मेड नोट्स ऑफ दैट आल्सो. या फिर उसके बाद जो पढ़ता था वो सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शंस ही पढ़ता था. तो शुरू के अटेम्प्ट में मैंने पूरी रीडिंग की है 2-3 बार, उसके बाद सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शंस पढ़ता था. और राइट बिफोर द एग्जाम आई ऑल्सो हैव हैड नोट्स ऑफ स्पेक्ट्रम, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ, तो उनको पढ़ता था. रिविजन कैन बी वेरी बोरिंग ऑल्सो फॉर पीपल जिनको एक ही चीज़ बार बार पढ़नी पड़ रही हो. तो थोड़ी वेराइटी लानी ज़रूरी है रिविजन में. आप हाईलाइट कर लो, आप उसके नोट्स कहीं पे बाहर एक्सट्रैक्ट कर लो पॉइंट्स में जो आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है. या फिर रिविजन आप ऐसे करो ना कि लेट्स से आप एक पर्टिकुलर एरिया एक बार में रिवाइज करो. हमेशा स्पेक्ट्रम की पेज 1 से रिवाइज करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आपका मन आया कि लेट्स रिवाइज अगस्त सफर में क्या बोला गया था, तो सीधे उस पेज पे जाओ, उसको रिवाइज करो. तो थोड़ी वेराइटी लानी ज़रूरी है रिविजन में भी मेरे ख्याल में. ओके. So आपने हिस्ट्री में obviously spectrum mention किया. Did you also use the NCRTs? I should have used the NCRTs, but I did not. Okay. चलिए, you also on to the next subject. Yes. Polity में I read the लक्ष्मीकांत वाली book. लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ी है, 1-2 बार पढ़ी है, but I would accept that कि मैंने लास्ट 2 साल में तो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है. मैंने लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बनाए थे. लक्ष्मीकांत के नहीं बोलूँगा, बट इन जनरल पॉलिटी के नोट्स वहाँ बनाए थे जहाँ पे कंफ्यूज होने का स्कोप है. फॉर एग्जांपल जहाँ देयर आर एरियाज जहाँ पे आप प्रेसिडेंट और गवर्नर में कंफ्यूज हो सकते हो, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में कंफ्यूज हो सकते हो. तो उसके लिए मैंने उनके नोट्स बनाए थे वन नोट पे. एंड प्रीलिम्स के लिए आई रेड द बेयर टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको मैंने बहुत बार रिवाइज किया. आई थिंक 10 बार के करीब रिवाइज किया होगा. बेयर टेक्स्ट रिवाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि कंफ्यूजन वाले एरियाज आपको पता लग जाएंगे कि जहाँ पे कंफ्यूज होने का स्कोप है. और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है कि XYZ इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन XYZ इज देयर. तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो टर्म है वो एज पर लक्ष्मीकांत नहीं पूछ रहा, वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा है. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो.
इसलिए you refer to the bare Yes, more yes. number of times. Okay. एंड ऑल्सो गिविंग टेस्ट, उससे भी हमारे काफी एरियाज क्लियर हो जाते हैं. अगर टेस्ट में आपने एक बार गलती कर दी कि लेट्स से वाइस प्रेसिडेंट में एज क्या दिया हुआ है, सो आप इट्स और आपने उसके नोट्स बना लिए और आपने उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया, तो दोबारा आप वो गलती नहीं करोगे. सो दैट्स हाउ आई डिड पॉलिटी आल्सो. एंड टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, मैंने शंकर की बुक पढ़ी है एक बार, बट इसमें भी मैंने लास्ट 1-1.5 साल से तो उस बुक को नहीं उठाया है. करंट अफेयर्स देखता था, PIB की वेबसाइट पे मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है एनवायरनमेंट के लिए, और इंटरनेट के एक्सटेंसिव यूज इसमें भी होता था. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस क्या रिपोर्ट ला रही हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है इसके लिए, और एग्जाम के पहले 1-2 कंपाइलेशन से मैं देख लेता था कौन सी स्पीशीज न्यूज़ में है, कौन से कन्वेंशंस न्यूज़ में है, ये 3-4 चीज़ें, और उनको फिर इंटरनेट पे गूगल सर्च करके या फिर कुछ कंपाइलेशन से पढ़ के मैं प्रीलिम्स पे करता था. बट अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ इनसे होगा. You have to read the शंकर वाली बुक, और people these days also read PMF IAS की बुक. So basic book एक बार पढ़ना is very important, उससे notes बनाना is very important. So I'm not suggesting any shortcuts. आपको basic चीजें पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद you can devise areas जहाँ पे आप छोटे तरीके से उसको कर सकते हो, but शुरू में उसको करना पड़ेगा ही. The next subject. टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी में NCERT 11-12 की बुक्स मैंने पढ़ी हैं, उन दोनों किताबों को. उसके पहले की भी ज्योग्राफी की बुक्स मुझे पढ़नी चाहिए थी, मैंने नहीं पढ़ा, उसकी वजह से ज्योग्राफी मेरा स्टिल वीक है आई वुड से. बट यूट्यूब वीडियोस और एनिमेशंस, आई थिंक ये इससे बहुत सारे एरियाज क्लियर होते हैं, बिकॉज एल नीनो, ला नीना, इसका आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो इट इज़ पॉसिबल कि आप कंफ्यूज हो जाओ. बट इंटरनेट पे देयर आर रिसोर्सेज, देयर आर वीडियोस जो कि बहुत अच्छे से एनिमेटेड वे में बताते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे साइकिल चेंज हो रहा है, कैसे एयर प्रेशर चेंज हो रहा है, इन सब चीज़ों की. और देयर आर ऑल्सो, इफ़ यू गूगल यू विल फाइंड सम वीडियोस जो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. सो ज्योग्राफी मेरा ऐसे ही हुआ था. NCERT 11-12 मैंने पढ़ी है, उससे बेसिक एरियाज कवर हुए, और फिर उनको रीइंफोर्स करने के लिए आई वॉच्ड वीडियोस ऑन इंटरनेट. इकोनॉमी के लिए आई रेड द श्रीराम IAS की बुक, बट उसको भी पढ़े काफ़ी टाइम हो गया, बिकॉज एक पॉइंट के बाद मैंने नोट्स बना लिए थे, मैंने बेसिक टर्म्स नोट कर लिए थे इकोनॉमी में, रेपो रेट, MSF रेट, बैंक रेट, लीबोर, ये सारे जो टर्म्स हैं उनको मैंने नोट कर लिया था, और उसको फिर करंट से रीइंफोर्स करता था. करंट में क्या चल रहा है, तो करंट में लेट्स से रेपो रेट चल रहा है, सो मैंने रेपो रेट को वापस रिवाइज किया कि रेपो रेट अच्छा होता क्या था, या फिर कोई भी चीज चल रही है उसको करंट को अपने स्टैटिक से लिंक करते जाता था. तो आई थिंक जैसे कि आपने पहले ही बताया कि आफ्टर अ पॉइंट यू स्टॉप्ड एडिंग न्यू कंटेंट टू योर टू योर कंटेंट दैट यू हैव टू कवर, एंड आपके पास जो था आप उसी को री-रिवाइज करते रहते थे. उन पे ही लिंकेजेस खोजता था कि कैसे उसको और स्ट्रांग तरीके से याद कर सकूं अगर करना भी पड़े. एग्जैक्टली. और क्या सब्जेक्ट रह गया? ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री. These are the major areas prelims के लिए. And इसी का से since आप resources पे ही discuss कर रहे हो, can you also tell us mains के लिए anything different from this that you read? इसमें prelims में एक चीज छोटी सी बच गई. ज्योग्राफी में मैप is a very important portion जहाँ से questions आते हैं. मैंने गूगल मैप्स का यूज किया था. गूगल मैप्स में मैं प्लॉट करता था एरियाज को, and right before the exam I had 200 to 300 places जो पास्ट 1-1.5 साल से न्यूज में है, और उनका 1-line डिस्क्रिप्शन. आई थिंक I'll share on my Telegram. गूगल मैप्स पे यू कैन प्लॉट प्लेसेस, और उनको फिर जूम करके देखो, रास्ते में चलते हुए कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो यू कैन सी दिस. एंड देयर आर ऑल्सो वेबसाइट्स. देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड एज लिजर्ड पॉइंट. उस पे वो क्विज फॉर्मेट में देता है कि लेट्स से हिस्ट्री में अफ्रीका में ब्लू नाइल को आप प्लॉट करो कहाँ पर है. सो यू हैव टू क्लिक ऑन द एरिया ब्लू नाइल वाला, इट सेज करेक्ट और इनकरेक्ट. एज अ क्विज फॉर्मेट में यू कैन रिवाइज. मैप का पोर्शन इज it's very important to revise map वाला portion for prelims specifically, because geography essentially becomes maps. Geography prelims. And what about the drawing of maps? उसमें भी आपको difficulty तो आई होगी. Yes, I think for mains it's very important to draw maps, or to be able to draw maps very quickly. Mains के लिए portion बहुत जरूरी है. और for example prelims में जैसे रशिया और यूक्रेन इस पर बहुत न्यूज़ में था. So if you can draw on a piece of paper ऐसे सर्कल करके रशिया, उसके अराउंड की कंट्रीज उसके अराउंड लिख लो. एंड अ क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड दिस ईयर, रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पे. सो प्लेसेस इन न्यूज़ जो चल रहे हैं उनको देखना बहुत जरूरी है, उनका मैप वाला पोर्शन देखना बहुत जरूरी है. So interesting. So I think आप जो बता रहे हो उससे the one point which I am trying to get from here is कि हर सब्जेक्ट का, since after a point you stop adding new content to it, but
as for the paper also जो आपने attempt किया, what you noticed was that हर subject was actually related to something currently happening, right? Yes. So current news में जो भी जैसे geography से अगर कोई area is related, you can be more assured that geography में शायद questions उस around that topic ही आए. Yes. So I think that's a great way of putting things, because especially UPSC में जब इतना कुछ पढ़ने को होता है, it becomes a little tricky कि कौन सा ज़्यादा पढ़े, right? Yes. But I think if there is something which is very much in news, then focusing more attention or probably thinking of the answers based on the current situation really would work. Yes, and Fiona, second part of the question was mains के लिए इन sources को कैसे use किया था मैंने? जी. Mains में we have to write things. पहली चीज तो ये है. So just recall करना is not sufficient. You have to be able to analyze it and present on a piece of paper. जी. And mains में बहुत सारे variables है. For example, time का variable है. We have to write in a very limited time. Space का variable है because we have to write in a limited space. और उसमें we have to fit a holistic answer जिसमें introduction हो, conclusion हो. There is a body which addresses the demand of the question. So it gets a very mix of different variables that we have to address. So mains के लिए I think let's take it paper wise, yes, so sure, it will become easier. अब GS1 से बताना Sure. शुरू करें. So GS1 में we have areas of history, geography, world history, post-independence, and major and art and culture. ये areas हैं. History और art and culture के लिए prelims का portion in terms of knowledge is sufficient, but difference आता है because we have to write it. Prelims में जैसे हमें keywords पता होते हैं कि बुद्धिज्म में कीवर्ड है बोधिसत्व. अब उस कीवर्ड को लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि उसको एक सेंटेंस में कैसे फ्रेम करूंगा. So it's very important to prelims के ही notes पढ़ता था मैं mains के लिए for GS1 for these areas art and culture and history because content is more than sufficient, but from toppers copies and from their notes I learned the art कि लिखूंगा कैसे उसको पेपर में. डिफरेंट प्रेजेंटेशन के तरीके भी मैंने उनकी कॉपी से देखा था. फॉर एग्जांपल एक एरो मार्क दे के आई कैन राइट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट. उससे टाइमलाइन का पता लगता है. एंड आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के लिए मेजरली प्रीलिम्स का पोर्शन सफाइसेस, बट यू हैव टू नो हाउ टू राइट इट, और उसके लिए यू हैव टू राइट टेस्ट्स इन एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट. जियोग्राफी के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स की, बिकॉज लिखना तो वही है, बट जियोग्राफी में वी हैव टू रीइंफोर्स इट विद मैप्स, डायग्राम्स and schematics. उसके लिए there are diagrams available in the internet, there are diagrams available in copies of selected candidates, और उनके अलावा you have to devise your own diagrams also. So आप एक बार पढ़ लोगे तो एक piece of paper पे just note down the diagrams जो कि आप एग्जाम में यूज करोगे, because एग्जाम में suddenly you cannot think of a new diagram, आपको पहले से करके रखना पड़ेगा वो. And there are very small areas like world history, post independence history. इससे एक दो क्वेश्चंस आते हैं, यू शुड फिनिश इट ऑफ इन 2 days 3 days, और उसके नोट्स बना लो 5-7 पेजेस के, एंड देन इट्स ओवर. वर्ल्ड हिस्ट्री में यू डू नॉट नीड एनीथिंग मोर देन दैट. सो वर्ल्ड हिस्ट्री में देयर आर 6-7 टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आते हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी देयर आर 6-7 टॉपिक्स जो कि आपको प्रिपेयर करना है. ऑन प्रिपरेशन जो नोट्स हम बना रहे हैं दैट शुड बी अ वेरी होलिस्टिक वे. इंट्रोडक्शन एक मन में सोचेंगे कि कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बॉडी में, प्रोज में, कॉन्स में, इश्यूज में. ये इन जनरल सारे जीएस के पेपर्स का बता रहा हूँ. इश्यूज, प्रोज, कॉन्स, वे फॉरवर्ड, रिकमेंडेशंस ऑफ एनी बॉडीज एंड वैल्यू एडिशन थिंग्स. ये इन सारी चीज़ों पर वी शुड हैव सर्टेन थिंग्स जो कि हम एग्जाम में यूज करने वाले हैं. वैल्यू एडिशन थिंग्स कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी पेपर, जो कि हम आगे बात करेंगे. इन जनरल GS1 इज ऑल दिस. GS1 थोड़ा स्टैटिक हो जाता है, and it's important to not keep adding new and new content to it, because static portion you cannot add anything more than a limit. Content is limited. जी. So presentation wala aspect becomes important. And I think to everyone who is preparing GS1, खुद से see the copies of people who have gotten more marks. For example, last year Shruti Sharma ma'am rank 1. उनकी सारी copies बहुत अच्छी हैं, but GS1 की copy in particular, I think everyone should see it. कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं आंसर्स को, कैसे डिमांड ऑफ क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हैं. एंड सोसाइटी एक क्वेश्चन छूट गया GS1 में, बिकॉज मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था तो काफी एरियाज ओवरलैपिंग थे, बट स्टिल कैसे लिखना है वो वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, बिकॉज कंटेंट हमें भी पता है, कास्ट का क्वेश्चन आएगा, वुमेन का क्वेश्चन आएगा, तो कंटेंट क्या है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू राइट इट इन 150 and 250 वर्ड्स. सो उसके लिए GS1 के आई थिंक 3-4 फुल लेंथ टेस्ट तो लिखने चाहिए. जिससे हमें एनी स्पेसिफिक रिसोर्स जो सोसाइटी के लिए काम आता है. सोशियोलॉजी की NCERT है, which people, Indian society की NCERT I believe, which people do read, but in general मैंने अपने एंथ्रो के पोर्शन से ही कवर किया था उसको. Okay.
एंड GS2? यस GS2. GS2 में इस बार जैसे लास्ट 2 मेंस में GS2 में मेरे मार्क्स क्लोज टू 100 थे. इस बार आई गॉट 129 मार्क्स विच इज प्रीटी डिसेंट. सो अराउंड 30 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है. GS2 एंड GS3 बोथ आर करंट बेस्ड. GS2 में भी एरियाज हैं पॉलिटी के, सोशल जस्टिस के, IR के, ये 3 मेजर एरियाज हैं. आई थिंक करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है GS2 में. सो वी शुड कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर प्रीलिम्स मेंस के भी गैप में, एंड वी शुड कीप एडिंग द थिंग्स जो कि न्यूज़ में चल रहे हैं. एंड आई थिंक GS2 में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द नोट्स. जैसे मैंने बोला कि इश्यूज़ क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है. रिकमेंडेशंस में कमिटीज़ आएंगी, डिफरेंट कमीशंस आएंगे, कोई रिपोर्ट आया है तो वो आएगा. तो इन 4-5 चीज़ों से हमें नोट्स को प्रिपेयर कर लेना चाहिए फॉर एवरी टॉपिक. GS2 में आई थिंक पीपल गेट लेस मार्क्स बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स हैं GS2 में. गवर्नेंस में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. सम पीपल लीव दोज टॉपिक्स, या फिर कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया. उससे प्रॉब्लम ये आती है कि बाकी क्वेश्चंस आपने अच्छे से एड्रेस किए भी हैं, तो वो क्वेश्चन आप अच्छे से एड्रेस नहीं करोगे. ऐसे 3-4 क्वेश्चन अगर आ गए तो आपके मार्क्स एवरेज ही रहेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस. सिलेबस देखना चाहिए, सिलेबस लगातार देखना चाहिए फॉर GS के पेपर्स. एंड नो टॉपिक शुड बी लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड. सबके नोट्स 2 पेज 3 पेज के होने चाहिए. आई थिंक मेरे मेंस में मार्क्स इंप्रूवमेंट का ये भी रीजन था. जैसे मैंने बोला कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे आफ्टर माई फर्स्ट मेंस, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस के टॉपिक्स छूटे हुए थे. उनके 3 पेज 4 पेज के नोट्स हैं मेरे पास. उसको प्रिपेयर करना, उसको रिवाइज करना जरूरी है. GS2 में मेजर यही है. IR का जो पोर्शन है उसके लिए भी करंट अफेयर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स. हमें यूज करने चाहिए. जैसे हर पेपर का एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, मल्टीपल स्पेसिफिक कीवर्ड्स है. एथिक्स में वी कैन नॉट राइट जेनेरिक आंसर बिकॉज उसके अलग कीवर्ड्स हैं. सम ऑफ देम आर मेंशन्ड इन द सिलेबस ओनली. GS2 के भी कीवर्ड्स हैं, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और अलग अलग कीवर्ड्स हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ये कीवर्ड्स आने चाहिए. एंड वैल्यू एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट GS2. यू हैव टू राइट सुप्रीम कोर्ट केसेस पता होने चाहिए. आई थिंक इट्स इफ पॉसिबल केसेस को हमें ईयर हमेशा लिखना चाहिए. इट्स नॉट जस्ट शंकरी प्रसाद केस लिख के छोड़ दिया, ईयर लिखो ब्रैकेट में. और कमिटीज पता होनी चाहिए, कमीशंस पता होनी चाहिए, रिपोर्ट्स क्या आई हैं वो पता होनी चाहिए. एंड थोड़ा स्पेसिफिक होना जरूरी है. आई थिंक GS2 एज वेल एज GS3 में स्पेसिफिक होंगे तब क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस कर पाएंगे, एंड तभी एग्जामिनर मार्क्स हमें दे पाएगा. तो GS1 में जैसे कि आपने कहा द मेन पॉइंट टू रिमेंबर, एंड GS2 दोनों के लिए व्हाट विल बी दैट वन मेन थिंग दैट दे नीड टू रिमेंबर. जैसे कि आपने कहा हर एक पेपर के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी या एक मेजर थिंग दैट दे नीड टू कीप इन माइंड. तो GS1 के लिए आपने कहा प्रेजेंटेशन बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? तो GS2 में व्हाट वुड यू से? GS2 में आई बिलीव थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज वैल्यू एडिशन. ओके. एंड GS3? GS3 is more objective in terms of nature. GS2 से भी ज़्यादा objective हो जाता है. तो GS3 में it's important to stick to the demand of the question, and जो पूछा पिन पॉइंटेड वे में उसको एड्रेस करें. इकोनॉमी का अगर क्वेश्चन है इन्फ्लेशन पे, तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट और एनीथिंग एल्स. इन्फ्लेशन शुड बी कवर्ड इन द क्वेश्चन. सिमिलरली अगर इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन आया बहुत स्पेसिफिक, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस वर वेरी स्पेसिफिक, लाइक S-400 मिसाइल के बारे में पूछा था, ब्लू LED के बारे में पूछा था. So in these questions you cannot bluff around or you cannot write a generalist answer. आपको बहुत specific रहना पड़ेगा डिमांड एड्रेस करने के लिए, और इसमें भी वैल्यू एडिशन का रोल काफी important है. But GS3 में it's more of to the point. Yes, you have to exactly. be more specific. Yes, and you have to reinforce the question with data. GS3 में I think it's very important to use data. Without data आपका आंसर बहुत generalist लगेगा. So उसको डेटा से reinforce करना. उसमें भी कमिटीज आती हैं, बहुत सारी कमिटीज. And GS3 में there are areas like security, जहाँ पे बॉर्डर की सिक्योरिटी हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो गई, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस सिक्योरिटी, बहुत सारे एरियाज हैं. तो इन सब पे हमारे पास नोट्स होने चाहिए. इन सब पे हमारे पास गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरनेशनल बॉडीज क्या कर रही हैं, सब काफ़ी लेयर्ड वे में पढ़ाई करनी है मेरे ख्याल में. गवर्नमेंट क्या कर रही है, बाहर की बॉडीज क्या कर रही हैं, हमारे देश में क्या इश्यूज हैं, बाहर क्या इश्यूज हैं, ऐसे ऐसे करके मतलब हर कुछ पे हमारे पास 2-3-4 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आंसर होलिस्टिक बन पाएगा. Great. And GS4 finally? GS4 ethics का पेपर आई थिंक इसमें सेल्फ स्टडी ऑफ 1.5 months इज इनफ. मेरे GS4 में फर्स्ट अटेम्प्ट में 77 मार्क्स थे, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे लगा था खुद से कर लूंगा, एथिक्स ही तो है. बट वी कैन नॉट राइट अ जनरलिस्ट आंसर इन दैट. सेकंड मेंस, फर्स्ट और सेकंड मेंस के बीच में मैंने इंप्रूव किया था. GS4 खुद से पढ़ा था, सेल्फ स्टडी की थी अच्छे से, और मेरे मार्क्स पिछले 2 मेंस में हैव बीन अबव एवरेज. आई वुड से 107 and 113.
GS4 में there is a very I think I'll tell you something कि GS4 में there are keywords mentioned in the syllabus and there are keywords outside of it. हमें सारे keywords को एक जगह पे लिखना है, हमें quotes थोड़े से collect करने हैं, हमें examples collect करने हैं both from mythology, from current affairs as well as from civil servants. इन सारे examples को एक जगह पे लिखना है. If possible we should prepare 3 or 4 shlokas also. ऐसे करके वैल्यू एडिशन की चीज़ें एक जगह रखनी है. एंड अब ये तो हुआ कंटेंट प्रिपेयर करना. अब इस पे यूज़ करना है पेपर में. यूज़ करना ऑल्सो इज जहाँ पे थोड़ी मुश्किल आती है बिकॉज वी हैव टू राइट एन आंसर विच शुड लुक एथिकल. और जो आंसर थोड़ा एथिक्स ओरिएंटेड होना चाहिए, जनरलिस्ट नहीं होना चाहिए. उसके लिए राइट टेस्ट. आई थिंक पीपल एथिक्स के तो 5-6 टेस्ट लिखने चाहिए राइट बिफोर द एग्जाम. और टेस्ट लिखने से ही हमारा आंसर और रिफाइन होते जाएगा. कीवर्ड्स का भी यूज तभी आएगा जब हम टेस्ट में उसको यूज कर रहे हैं. एग्जाम में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सडनली स्टार्ट यूजिंग द कीवर्ड्स. एंड GS4 में भी मेंटल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज GS1-2 होता है एक दिन, अगले दिन होता है 3-4. सो GS4 इज द सेकेंड पेपर ऑफ द सेकेंड डे. सो फटीग आता है उस पेपर में बहुत बुरा, और पेपर कंप्लीट करना बिकम्स अ टास्क. सो अगर हमने टेस्ट पहले लिखे हैं तो दिमाग को पता होता है कि पेपर कैन बी कम्प्लीटेड और ऐसे लिखना है, ऐसे टाइम मैनेज करना है तो पेपर विल बी कम्प्लीटेड. सो GS4 में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द पेपर. एंड आई थिंक GS3 और 4 का जो ब्रेक होता है दोपहर में, उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज द कीवर्ड्स ऑफ GS4 बिकॉज सडनली हमें एक ऑब्जेक्टिव पेपर से एक बहुत एथिक्स का पेपर पे शिफ्ट करना होता है. सो कीवर्ड्स सडनली हमें शिफ्ट करने होते हैं दिमाग को कि अब हमें एथिक्स लिखना है जी. सो कीवर्ड्स रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से हमारे दिमाग को वो शिफ्ट मिलता है कि चलो अब GS3 हो गया, GS4 पे आना है. ओके, तो सिंस आप ये शिफ्ट की बात कर रहे हो, द ओनली थिंग नाउ दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू इज कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही इज रिक्वायर्स वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजी व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर आल्सो. तो थोड़ा सा इफ यू कैन जस्ट लाइक इन शॉर्ट आल्सो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन प्रीलिम्स में आपकी अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी क्या रही थी, so that the others can also take pointers, and mains में क्या थी आपकी strategy for attempting the paper? Yes, prelims में I used to attend more than 95 questions in all the prelims that I wrote. Okay. ये मैंने खुद से ही डिवाइस किया था because I knew कि अगर मैंने fundamental rights भी पढ़ाया तो भी मैं 10 में 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत कर ही दूंगा because accuracy मेरी उतनी अच्छी नहीं है. So I had to attempt more number of questions. और because I had analyzed the PYQs, मुझे पता था कि elimination कैसे काम करता है. और अगर मैंने लॉजिकल गेस से 10 क्वेश्चन किए हैं सो आई वुड बी एबल टू गेट 3 और 4 मिनिमम 3-4 करेक्ट. सो मेरे मार्क्स नेगेटिव तो नहीं जाएंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे, चाहे 0 रहें बट पॉजिटिव ही रहेंगे. सो अराउंड 95. yes. और कितने राउंड्स में आप पेपर कंप्लीट करते थे? आई ट्राई टू इंश्योर कि 2-3 राउंड हो जाए, बट दिस इज नॉट वेरी सैक्रोसैंक्ट. इट डिपेंड्स ऑन द पेपर. पहले राउंड में आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द 30 इजी क्वेश्चंस इन फर्स्ट 30 मिनट्स. 30 इजी क्वेश्चंस का मतलब है कि शुरू के 30 क्वेश्चन हमारे आसान पहले 30 मिनट में मिल जाने चाहिए जी. इससे फ़ायदा ये होता है कि इनिशियल हमारा पार्ट स्मूथली निकलता है. उसके बाद सेकेंड राउंड में वी हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चन जो थोड़ा ज़्यादा टाइम डिमांड कर रहे हैं, और ऐसे करके 3 इटरेशंस मोर और लेस लगते थे. लास्ट राउंड में बहुत कॉशियसली हमें आंसर करना होता है बिकॉज नेगेटिव होने का बहुत स्कोप है थर्ड राउंड में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी कॉशियस. एंड मेंस में क्या रही थी आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी? मेंस में आई यूज टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस जहाँ पे जैसे 10 नंबर के क्वेश्चन है, 15 नंबर के क्वेश्चन है. मैं क्या करता था, मैं शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 अटेम्प्ट करता था 10 नंबर वाले. देन आई स्विच टू ऑल द 15 मार्कर्स एंड देन आई सॉल्व क्वेश्चन 5 to 10 मार्कर्स. इससे ये होता था कि शुरू के 4 क्वेश्चन अच्छे से लिखता था, 15 नंबर के क्वेश्चन छूटते नहीं थे, और अगर कोई क्वेश्चन की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है तो क्वेश्चन 9 और 10 ही होता था मोस्टली. आई यूज टू इंश्योर कि टाइम लिमिट फॉलो करूं बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट लिमिट टू द टाइम. सो हम टाइम लिमिट फॉलो करना चाहिए और स्पेस को हमें बहुत एडिक्वेटली यूज़ करना चाहिए, जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए कि कहाँ पे हम कीवर्ड्स डाल सकते हैं, कहाँ पे छोटा डायग्राम डाल सकते हैं, और हमें इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन तीनों को फॉलो करना ही है. कंक्लूजन वी कैन नॉट स्किप. शुरू के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये होती थी कि बॉडी एड्रेस करने में आई डिड नॉट गेट द स्पेस टू राइट द कंक्लूजन. सो इसको मैंने एड्रेस किया था ओवर टाइम बाय राइटिंग टेस्ट, बाय प्रैक्टिसिंग. ग्रेट. तो एक पार्ट रह जाता है मेंस का व्हिच इज द एसे पोर्शन आल्सो. इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट अ लिटिल कि आप एसे सिलेक्ट कैसे करते थे एंड व्हाट वुड बी लाइक, अगर देयर इज एनी स्ट्रेटजी दैट यू फॉलोड फॉर दैट टू. यस, फियोना एसे और एथिक्स का प्रिपरेशन काफी हैंड इन हैंड होता है मेरे ख्याल में.
ethics का content can be used in essay also, and especially because essay topics philosophical आ रहे हैं. Last year all 8 questions were of that nature. Okay. And I think in coming years also philosophy के ही questions आएंगे, philosophy के ही quotes आएंगे जिन पे we have to write the essay. So I think ethics वाला content can be used here also. essay में भी I ensured कि मेरे पास quotes हों अलग से, मेरे पास कुछ anecdotes हों जो अगर fit हो रहे हैं तो I can introduce my essay with those. कुछ कंक्लूजन के लिए थोड़े अच्छे सेंटेंसेस हों, अच्छे श्लोकास हों, ऐसे करके होता था. ये तो हुआ वैल्यू एडिशन. अपार्ट फ्रॉम दैट 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, ऐसे का टॉपिक सेलेक्ट करना और बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर करना है. टॉपिक सिलेक्शन में आई यूज टू इंश्योर कि मैं वैसे टॉपिक सेलेक्ट करूं. पहली बात तो इंटरप्रिटेशन शुड बी क्लियर. अगर मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ किसी टॉपिक को तो आई डिड नॉट टच इट, बिकॉज अगर इंटरप्रिटेशन गलत हो गया so I'll be doomed because marks ही नहीं मिलेंगे उस टॉपिक में, चाहे मैं कुछ भी लिखूं. So first thing was that. Second, अगर मेरा interpretation is clear about the topic, I used to think कि मैं अलग-अलग dimensions से point निकाल पा रहा हूँ या नहीं. If I'm able to extract different points of different dimensions, then only I used to attempt the essay topic. और उसमें भी I used to ensure कि conclusion के लिए 1.5 पेज रहे, more or less conclude करने के लिए. 1.5 पेज अराउंड इंट्रोड्यूस करने के लिए रहे, एंड 6 to 7 पेजेस फॉर राइटिंग द बॉडी. बॉडी में आई यूज टू फॉलो 3 अप्रोच थे मेरे, जिनमें से आई यूज टू फॉलो एनी वन ऑफ देम. फर्स्ट इज द स्टेक होल्डर अप्रोच, जैसे वुमेन, ट्राइबल्स, चिल्ड्रन, एल्डरली, इन पे थोड़ा थोड़ा लिखूंगा. सेकेंड इज द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वाला एस्पेक्ट. एंड थर्ड इज द स्पेकली विच पीपल टॉक अबाउट, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक. इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया था, मूवी, स्पोर्ट्स, ऐसे करके खुद का निमोनिक बना लिया था. इस पे लिखता था. अगर कोई ऐसे टॉपिक इन तीनों में किसी पे फिट हो रहा है सो आई विल राइट ऑन दैट. थोड़ा मैकेनिकल अप्रोच था, बट इट डिड वर्क. So I think बस लास्ट आपके ऑप्शनल का रह जाता है. Yes. Why don't you share a little bit about the resources you used and any specific strategy you want to share? Yes, my option was anthropology, and in any optional I think you have to read the basic text very thoroughly. तो मैंने जो बेसिक बुक्स होती है, नदीम हसन सर की बुक है एम्बर एंड नंबर इज अ बुक व्हिच आई डिड नॉट रीड, बट मैंने इस अटेम्प्ट में उससे वैल्यू एडिशन की कंटेंट निकाल लिए थे. बेसिक बुक्स पढ़ने ज़रूरी हैं. If you can have a mentor or a teacher or a coaching, I think you can do it, but on your own discretion obviously. मैंने ये सारी चीज़ें की थी. मैंने बेसिक बुक्स एक बार पढ़ा था. सारे टॉपिक्स के मेरे पास नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं. और किसी टॉपिक पे अगर मेरे पास नोट्स नहीं है तो किसी सेलेक्टेड बच्चे की कॉपी से मैंने वो नोट्स निकाल लिए या खुद बना लिए. बट आई डिड नॉट स्किप एनी टॉपिक ऑफ माई एंथ्रोपोलॉजी एज वेल. सो एक बार बेसिक बुक्स पढ़ लिया, उसके बाद लेयर्ड वे में वैल्यू एडिशन करता था. वैल्यू एडिशन कैन बी डायग्राम्स, कैन बी स्कीमेटिक्स, कैन बी केस स्टडीज. इन एंथ्रो वी हैव केस स्टडीज जो कि कलेक्ट करना ज़रूरी है. एंड आई थिंक इट गेट्स रिवॉर्डेड अगर हम थोड़े नए केस स्टडीज लिख रहे हैं जो हमारे खुद के रिसर्च पे हों. सो राइट बिफोर माई मेन्स आई यूज टू सर्च फॉर डिफरेंट केस स्टडीज बाई माई सेल्फ. खुद से ऑथर का नाम, खुद से केस स्टडी का जो एक्सट्रैक्ट है उसको नोट करता था. एंड आई यूज दैट इन माई पेपर ऑल्सो. एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट ब्लफ इन एंथ्रो का पेपर. केस स्टडीज खुद से नहीं बनाने हैं. केस स्टडी जिसने दिया उसका नाम ब्लफ नहीं करना है, बिकॉज वो फिर नेगेटिव रिपरकशंस होते हैं. एंड ऑल्सो फॉर ऑप्शनल यू हैव टू राइट टेस्ट, बिकॉज टेस्ट लिखने से ही पता लगेगा कि पेपर कैसे मैनेज करना है. बिकॉज जीएस का पेपर से डिफरेंट होता है. वी हैव टू सेलेक्ट क्वेश्चंस इन एंथ्रोपोलॉजी in every option as well. So and there is one more thing that question किस topic से select कर रहे हैं. People से biological anthropology से select करना is more rewarding because थोड़ा objective हो जाता है and there is less scope of cutting or reducing marks, deducting marks. So I think with test ही आएगा कि कौन से question select करूँ, कैसे पेपर अप्रोच करूँ और कैसे वैल्यू एडिशन को फिट कर पाऊँ उस कंटेंट में. चलिए, सो एक बार इफ यू कैन जस्ट गिव अस अ रिकैप कि हर यू नो जीएस के पेपर्स एंड ऑप्शनल्स में आपके स्कोर्स क्या-क्या आए थे. एसए में आई हैड 118, GS1 में आई हैड आई थिंक 92. I can be 1-2 marks here and there. No problem. GS2 में I had 129, GS3 में I had 81. GS3 में marks on the lower side हैं सबके, but 81 is I can say average ही हैं. GS4 में I had 113 and Anthro paper 1 में I had 131, paper 2 में I had 157 and interview में I had 185 marks this year. So GS का total is 450 and optional is 288. चलिए, इंटरव्यू की ही बात जब आपने कर दी तो लेट्स टच अपॉन द लास्ट पार्ट. आई नो दिस इज द मोस्ट interesting part of the entire phase. Most of the toppers like this stage.
तो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इंटरव्यू आपका कैसा गया था एंड प्रिपेयर करने के लिए आपने स्पेसिफिक कुछ किया था एंड इफ यू कैन जस्ट टेल अस मे बी 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटरव्यू राउंड जो आपको पूछे गए थे So my interview was on 23rd March, so I had time to prepare for the interview. I gave some mock tests, but उसके पहले मैंने अपना background study किया था. I sat with my DAF, मैंने basic questions prepare किया जो उस DAF के keywords में हैं, and I made notes of that also. एक बार ये करने के बाद कुछ mocks दिए मैंने, जिससे पता लगा कि certain areas of my DAF I'm still weak in. फिर उसको reinforce किया. I sat with my friends also. उन्होंने कुछ questions पूछे. I think apart from the content part, जो soft skill होती है, जो gestures, body language, इसको भी थोड़ा refine करना is very important. We should not sound arrogant while speaking. Eye contact should be there. जो थोड़े basic चीज़ें होती हैं, उसको refine करना ज़रूरी होता है. ये सारी चीज़ें मैंने की थी because I had time. I could improve these things. And कुछ questions? Yes. राज शुक्ला सर का बोर्ड था मेरा 23rd March forenoon. मेजर डैफ पे क्वेश्चंस थे. माय हॉबी इज बास्केटबॉल, लिसनिंग टू गजल्स, इन सब पे क्वेश्चंस थे, बट मेजर एरिया वाज एनवायरनमेंट. सर आस्क्ड मी कि अगर आपको किसी ऐसे इंसान को कन्विंस करना है हु डज नॉट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज, सो हाउ विल यू डू इट. और ही ट्राइड टू आस्क मी दैट क्लाइमेट चेंज है नहीं है, सारे डिग्निटरीज दे गो इन प्राइवेट जेट्स to talk about climate change, so isn't it hypocritical? So there were tricky questions which I had to answer, and apart from that my interview was smooth and thankfully marks were given. चलिए, so since आपने ये question mention कर ही दिया है, maybe if you can just say a little bit about what was your answer so that the ones who are listening also can frame better answers. In the question that many private dignitaries go in their private jets, many dignitaries, I tried to shift the question towards what India is doing and how we are showing light to other countries. मैंने बोला कि sir, India is taking lots of initiatives, so we should see it as a thing जहाँ पे हम promote कर रहे हैं इस चीज़ को, and people should learn from ourselves. So इसको मैंने shift कर दिया था towards our our strength. और उससे I think I was able to avoid this question. All right. Chaliye, that's great. So I think that brings us to almost all the stages getting covered of the examination, and जैसे कि आपने हमें scores भी already बता दिए for all your parts, and I think finally 4th attempt में this has happened and you've got the result that you were waiting for. Finally now you're going to go into your training period and उसके बाद शुरू होगा आपके officer बनने का सफर. So if I was to just ask you one thing that you are most excited about, कि अभी जैसे ही once you finish your training, what's the one thing if you really want to work towards some issue in your kind of city or anywhere else that you're seeing, or anything specific jiske liye you want to work towards, what will that be? Education is something which I'm very passionate about. My father is also a teacher. My father is also a teacher, and I would like to work in primary education because I think and health also, but education is something which I'm deeply passionate about, and I will ensure that I work wherever I go towards it. That is great. So I think this brings us to the end of the entire academic questions and understanding more about the preparation. एक last part, छोटा सा part रह जाता है हमारे CTwT का, जहाँ पे I have a few fun questions for you, और आपके answers बस एक line या एक word में होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. Okay. And it's just some fun questions. So let's see how you do. It's the rapid fire. Are you ready for it? I am. Okay. First question, if you were to describe yourself as one color, what would it be and why? White. Why? I think I am very peaceful and बहुत I ही remain शांत calm. स्वभाव Yes, के हो आप. I remain calm in different situations also. Great. If you had an option to probably get into a time machine and go back to any year in the past, which one would you want to go back to and why? To the Vijayanagar Empire, because the architecture of that time is exquisite, and I want to know how they made all of that. That's one area. That's your engineering side coming up. Yes, civil engineering side in Yes. particular. Okay, great. If you had an option to, pick one superpower for yourself, what would it be? I would like to fly. And fly to? In general, to avoid the traffic, that is primarily, and in general to different places. Okay. And one last question. If you had the option to
probably become, say the change maker for our country, and there's one major change which you can make, what would that be? I think I would bring sports and education together. We should not see these as different entities, and there has to be behavioral change that has to be brought in. The sports and education should go hand in hand, and physical as well as mental health is also important. I think mental health is an area जो कि थोड़ा unexplored रह जाता है इस पूरे preparation में, because of lack of awareness also. And I think a lot of people don't want to talk about it. Yes, and taboo that is in our society. True. I think we should talk about it is more. We should talk about it is more. That's all the questions that I have. I have something small here from our team for the time that you gave. आज आप आए हमारे यहाँ. It's obviously it has a lot of meetha, so I hope that you are someone who likes sweets. So yes, so before I end this episode today, I would just request कि एक message जो आप हमारे सारे learners जो शायद UPSC या JEE या किसी भी exam के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर एक message जो आप सबको देना चाहो. I think there are some do's and don'ts in the preparation. I noted it down so that मैं भूल ना जाऊँ इसको. Don'ts is we should not seek perfection in this exam because perfection is a myth. अगर हम perfection खोजने जाएंगे so हम depth को cover करते रहेंगे, breadth of the topic cover नहीं हो पाएगा. That's one. Second is we should not study in isolation because this exam is one जहाँ पे हमें parents, family, friend का support चाहिए होता है. So we should not study in isolation for this exam. Third is the destination fever which should avoid. Destination fever ये होता है कि हम journey को importance नहीं देते हैं and हम journey को देखते हैं, destination को देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है. It's very important कि journey को भी equally हम exciting बनाएं और उसको enjoy करें because that is what will lead us to the destination. And fourth is we should avoid burnouts in this preparation. हमेशा break लें, थोड़ा pace करें study को और पीक करें राइट टाइम पे. बर्नआउट होने का मतलब है कि एक चीज को कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक्स. आई थिंक देयर इज अ ग्रे एरिया जहाँ पे हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए. बिल्कुल आइसोलेशन एंड बिल्कुल ही सोशल होने से अच्छा है कि वी शुड लाई इन द ग्रे एरिया अपने डिस्क्रिप्शन को यूज करते हुए. एंड सबसे बड़ा डूज ये है हमारे प्रिपरेशन का कि हमेशा अपने आँख और कान को खुला रखना चाहिए कि क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं. किसी और की बात पे वर्बेटिम नहीं माननी चाहिए हमें. अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करें कि कौन सा कंटेंट मेरे लिए यूज़फुल है, कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, किसकी बात माननी है, किस मेंटर की बात माननी है. ये सारी चीज़ें अपने डिस्क्रिप्शन पे ही चलनी चाहिए, नॉट बाय लर्निंग और नॉट बाय वाचिंग एनी यूट्यूब वीडियो और एनी इंस्टाग्राम रील. हमें खुद से सारी चीज़ें देखकर अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्टिवली परस्यू करनी चाहिए. These were my messages for the future aspirants. All the best to you too. I hope you'll all clear it. Do not give up is my message to all of them because failure is going to happen. Failure has happened with me too. और it's important to not repeat the mistakes और उन चीज़ों को दोबारा pursue जब हम कर रहे हैं. So we should not repeat the mistakes और उनको improve way में करना चाहिए. That's what we can do. We can only control what is in our hands. And we can only control the controllables. I think, Utkarsh, that's a very good way to end this entire thing, and also a very great message from you. Control the controllables. Yes. And put in your hard work and keep trying. It's Yes. And जैसे कि you are a living proof for it that try until you will finally succeed. So thank you, Utkarsh, for coming in today. आपने हमें टाइम दिया, आप यहाँ पे आए, you shared all that information for all our learners. आपको कैसा लगा इतने दिनों बाद वापस आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली बिकॉज आई कुड मीट यू इन पर्सन. बहुत टाइम पहले हमने बात की थी एंड इन जनरल आई वांटेड टू टॉक अबाउट डिफरेंट एरियाज. मेंटल हेल्थ इज वन एरिया जहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ और जहाँ पे आई विल कीप टॉकिंग इन फ्यूचर ऑल्सो. People can go to my Telegram channel जहाँ पे मैंने शेयर किया है काफ़ी कुछ and I will be available to further guide people if they need me. That is amazing. I think that has always been how you have been, and we have seen it in the past, and I'm sure in the future also you will always be the guiding force over there for many of us. So thank you very much, Utkarsh, for coming in. It was great meeting you finally. Thank you.